Hello friends, welcome to MedBrainy. This is our new YouTube channel. In this channel, we discuss about medical entrance exams like NEET PG, INICET, FMG. We will teach every subjects regarding these exams and also teach how to crack the entrance exams. Today we will start from the obs and gynae, and today's we start from a small topic of obs and gynae, and it is the MTP. Let's start. As we know that MTP stands for medical termination of pregnancy, but it is actually medical termination of unwanted pregnancy. But it is actually termination of unwanted pregnancy. Understand? जिस प्रेगनेंसी को रखना नहीं चाह रहे हैं उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही एमटीपी कहलाता है. It is an act. Understand? It is an act that came in 1971. But the amendment of this act occurred in 2022. Understand? Let's see what is the important points. Important point is the consent requirement that we are going to terminate a pregnancy. Then consent must be required. Then whose consent is required? Only the female. Only the female who is going to terminate her pregnancy. Only those consent is required. No consent of husband is required. It is an important question that no consent of husband is required. Understand? ये रिपीट कर रहे हैं बार बार. नो कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग MTP. Understand? But if female is less than 18 years of age or female is mentally ill. Understand? If female is less than 18 years of age or female is mentally ill, then guardian's consent is required. Understand? Whose consent is required? Guardian's consent. कहाँ पे चाहिए? अगर फीमेल मेंटली इल है, अगर फीमेल मेंटली इल है या लेस देन 18 years एज है, then guardian's consent is required. Understand? It is a very important questions. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. I hope so. Let's proceed. Who can perform MTP? कौन कर सकता है? First is the registered medical practitioner, and these RMP must assist in 25 MTP. Understand? वो 25 MTP में काम कर चुका होगा, and among those 25 MTP, at least 5 should be done as a primary surgeon. Understand? उस 25 में से 5 वो एज अ प्राइमरी सर्जन की तरह बन करके MTP को किए होंगे. Then that RMP is able to perform MTP by himself or herself. Understand? And if any registered medical practitioner has done house job in obs gynae for 6 months, then he or she is able to perform MTP. Understand? And third is the
if a person is having diploma or degree in obs gynae, then he or she can perform MTP. चलो इसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कर सकते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट he or she must assist in 25 MTP, and among 25 MTP at least 5 should be done as a primary surgeon, and RMP must be doing house job in obs gynae for 6 months, then he or she is able to do the MTP. And और क्या क्राइटेरिया है? If a doctor is having diploma or degree in obs gynae, then he or she is able to perform the MTP. Understand? चलो let's proceed. अब देखते हैं up to how many weeks MTP can be performed. ये 9 months की प्रेगनेंसी होती है तो 9 months तक, till 9 months तो हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते. तो कुछ गाइडलाइंस है. लेट्स सी व्हाट आर द गाइडलाइंस. गाइडलाइंस केम according to the amendment rules. We divided it into two parts. One is the old guidelines and other is the new guidelines. Old guidelines according to 1971 rules and the new guidelines according to the 2022 rules. Understand? Let's see. For these guidelines, tell. These guidelines tell that MTP done up to, in general, old guidelines says that 20 weeks. New guidelines क्या कहते हैं? Up to 24 weeks. But not in all cases, only in some cases. Not in all cases, only in some cases. Understand? Most important point is how can we remember? In competitive exams, very difficult task is to remember something. पढ़ तो सब लेता है, याद सबको नहीं रहता है उस 3 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल में. We can remember it by mnemonic. Let's see. MTP. T के बाद क्या आ रहा है? M के बाद जो है T. T4 termination, T4 20. Understand? T4 termination, T4 20. तो ये जो हमारा 20 है इसको हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे ओल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. एंड न्यू गाइडलाइंस में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 4. 20 + 4 देन इट्स बिकम द 24. अंडरस्टैंड? याद हो गया? अब चलो दूसरा आता है पॉइंट. इफ MTP has to be done for contraceptive failure. हो सकते हैं ना कंडीशंस कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर गए और फीमेल ने कंसीव कर गया. देन अकॉर्डिंग टू ओल्ड गाइडलाइंस, इफ MTP has to be done for contraceptive failures, then it is up to 20 weeks. Understand? न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? न्यू गाइडलाइंस भी कहती है 20 वीक्स. हाउ कैन वी रिमेंबर दिस? वी कैन रिमेंबर दिस. ये क्या है? सेम है. क्या है? सेम. हम जो है इसे याद रखेंगे. कैसे याद रखेंगे? SAME शेम इक्वल्स टू C. कॉन्ट्रासेप्टिव का C उसको भी सेम पढ़ लेंगे. ठीक है? इसके C को इस और इसके S को एक मानेंगे. Understand? Then it is the equal weeks, that is 20 weeks, 20 weeks. Understand? तीसरी बात आती है if MTP done for fetal anomaly. देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे के में एनोमैलीज आ जाती है, जस्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा है, कुछ भी है. देन फीटल एनोमैली से ओल्ड गाइडलाइंस क्या कहती है? अप टू 20 वीक्स. न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? 24 वीक्स. अंडरस्टैंड? एंड इफ सीवियर फीटल एनोमैली,
If severe fetal anomaly, then there is no upper limit. That is very important. Understand? अगर fetal anomaly बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई भी upper limit नहीं है. Understand? Yeah, we require doctor's opinion. We require doctor opinions. Let's see. डॉक्टर्स की सलाह तो लेंगे ही, वो बोलेंगे कि हाँ एमटीपी कर सकते हैं, देन वी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. अंडरस्टैंड? फर्स्ट आता है हमारा सिंगल डॉक्टर ओपिनियन. क्या आता है? सिंगल डॉक्टर ओपिनियन. एक डॉक्टर की ओपिनियन कब चाहिए होगी? ठीक है. देन ओल्ड गाइडलाइंस सेज दैट अप टू 12 वीक्स, up to 12 weeks we require single doctor opinion. न्यू गाइडलाइंस क्या कहती हैं? up to 20 weeks वी रिक्वायर सिंगल डॉक्टर ओपिनियन. नहीं, अगर 20 वीक तक कोई प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, देन एक डॉक्टर ही नहीं बोला, मान जाना है. ठीक है. अब क्या है? 2 डॉक्टर ओपिनियन. ओल्ड गाइडलाइंस क्या कहती है? वही है, क्योंकि हमें 20 वीक्स तक तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना था, अप टू 12 to 20 वीक्स. न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? चूंकि हमने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, टर्मिनेट वाले पीरियड को बढ़ा दिया, देन अप टू 20 to 24 वीक्स वी रिक्वायर्ड 2 डॉक्टर ओपिनियन. अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब है किसको हम याद कैसे रखेंगे? लेट्स सी. हम लोग इसे याद रखेंगे क्रॉस नमोनिक से. देखो, ओल्ड गाइडलाइंस का 20 वीक्स और डॉक्टर्स के ओपिनियन का 20 वीक्स, ये क्या है? मैच कर रहा है न्यू गाइडलाइंस से. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस नमोनिक. अंडरस्टैंड? देन ओल्ड गाइडलाइंस में 20 वीक्स क्या था कि एमटीपी कितने वीक्स तक कर सकते हैं? तो 20 वीक्स तक. और न्यू गाइडलाइंस में क्या था कि सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन क्या कब तक ले सकते हैं? अप टू 20 वीक्स. अंडरस्टैंड? अब हम जो है 3 नंबर याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे? 12, 20, 24. डॉक्टर्स के ओपिनियन की ज़रूरत है. ओल्ड गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? ओल्ड गाइडलाइंस कहती हैं कि 12 वीक्स तक हमें सिंगल डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए. न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? अप टू 20 वीक्स. 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन कब चाहिए? ओल्ड गाइडलाइंस क्या कहती है? अप टू 12 to 20. एंड न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है? 20 to 24. अंडरस्टैंड? आई होप ये समझ आ रहा होगा. या फिर से बताऊं? देखो, एमटीपी परफॉर्म करते हैं, इसके लिए गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस है, क्राइटेरिया है. ओल्ड गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस. मैंने क्या बताया था? एम के बाद टी आ रहा है, T4 20. 2 तो नहीं होगा, 2 वीक्स तक तो हम कंसिडर भी नहीं करते. 94 20 अप टू 20 वीक्स ओल्ड गाइडलाइंस कहती है कि एमटीपी को हो सकते हैं. न्यू गाइडलाइंस क्या बताती है कि हम उसे में +4 ऐड करेंगे. ये हमारा नमोनिक है, अप टू 24. देन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर क्या नेमोनिक बताया? सेम केम C4C. ठीक है. अब क्या है? तो यहाँ 20 वीक्स, यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हुआ है, हम 20 वीक्स तक ही एमटीपी कर सकते हैं. फिटल एनोमली है, खुद सोचो, 20 वीक्स तक है, यानी कि हेयर द 20 वीक्स रिमेन्स सेम. सी, हेयर the 20 weeks remains the same. न्यू गाइडलाइंस क्या बोली? 24 वीक्स तक कर सकते हैं फिटल एनोमेनी के लिए. लेकिन अगर सीवियर है, देन कोई अपर लिमिट नहीं है. अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलो, लेट्स प्रोसीड. अब है, मैंने तो बताया था ना कि कुछ एमटीपी को 24 वीक्स तक टर्मिनेट कर सकते हैं न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. लेट्स सी ये क्या है. देखो,
सबसे पहले है इफ अ फीमेल इज माइनर, माइनर समझ रहे हैं, माइनर है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा है इफ अ फीमेल इज मेंटली अनस्टेबल, अंडरस्टैंड, देन एमटीपी कैन बी डन अप टू 24 वीक्स। तीसरा है if a female conceives due to rape, understand। तीसरा है, चौथा है pregnancy due to incest, understand। इसे हम क्या याद कैसे रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे, एक माइनर फीमेल है, वो मेंटली अनस्टेबल है एंड उसका रेप हुआ, ठीक है। ये चीज़ इससे एक कहानी की तरह याद रखेंगे, अंडरस्टैंड, इसे एक कहानी की तरह याद रखेंगे। देन वी कैन रिमेंबर दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज, अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन डू एमटीपी अप टू 24 वीक्स, अंडरस्टैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज एमटीपी तो करेंगे, ड्रग्स की तो जरूरत पड़ेगी। विच आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर एमटीपी, अंडरस्टैंड। इसको कैसे समझते हैं? दो ही ड्रग है, कैसे याद रखेंगे? एम मीजोप्रोस्टोल एंड मीफेप्रोस्टोन, अंडरस्टैंड, मीजोप्रोस्टोल एंड मीफेप्रोस्टोन, एम एम एम, ठीक है, याद रहेगा। एम एम एम, एम फॉर एमटीपी, एम फॉर मीजोप्रोस्टोल, एम फॉर मीफेप्रोस्टोन। चलो, अब जो है सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू भी करने होंगे। मैं सिखाऊंगी हाउ टू रूल आउट द ऑप्शंस एंड इट विल कम बाय प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड। अभी एमटीपी पढ़ा है, अभी एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, अंडरस्टैंड। सी, अकॉर्डिंग टू 2021 एमटीपी एक्ट, एमटीपी इज अलाउड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर टिल व्हाट जेस्टेशनल एज। फर्स्ट है 12 वीक्स, सेकेंड है 20 वीक्स, थर्ड है 24 वीक्स, फोर्थ है नन। हमने अभी क्या देखा था? कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर्स, कुछ नमोनिक याद आ रहा है? C4S, अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए सेम था, सेम क्या था? 20 वीक्स था। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 20 वीक्स इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड। सेकेंड है टू परफॉर्म एमटीपी फॉर अ मेंटली चैलेंज्ड फीमेल, कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये तो मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि अगर कोई भी फीमेल लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हो या मेंटली इल हो, का कंसेंट किससे लिया जाता है? गार्जियंस से। सी द ऑप्शंस, हस्बैंड और पार्टनर, नेवर, लीगल गार्जियन, देखते हैं, डॉक्टर, नेवर, मजिस्ट्रेट, नेवर, हु विल गिव द कंसेंट? लीगल गार्जियन, अंडरस्टैंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। थर्ड, which of the following is punishable under an MTP Act? कौन सा पनिशेबल है? इसे जो इस क्वेश्चंस को है, ये तो अभी पढ़ा नहीं, लेकिन हम अपने बेसिस पे बताएंगे, जो हमने सीखा है उससे रूल आउट करेंगे। एमटीपी डन अप टू 24 वीक्स, हमने क्या देखा? गाइडलाइंस कहती है कि 24 वीक्स तक कर सकते हैं। देन व्हाई शुड इट बी पनिशेबल? Second, done by government authorized center. Yes, it should be done, always done in a government authorized center. Done by experienced RNPS, having diploma or degree in obs gynae, master's assistant 25 MTP, and at least 5 should be done as a primary surgeon. Fourth, non-entry in MTP register, not sending reports to DDHS. Think, is it a clear option? No. अगर हम एमटीपी रजिस्टर में एंट्री नहीं करेंगे, हाउ कैन डॉक्यूमेंटेशन विल बी फॉर्म? नो एनी डॉक्यूमेंटेशन विल बी फॉर्म। देन इट इज important and it is a very important thing that all MTP should be entered in MTP register and it must be sending to DDHS, understand? Then it is a incorrect options. Fourth,
According to amendment in the MTP Bill of 2020, until what gestational age it is permissible to include MTP in mentally ill victims. देखो क्या है, अभी हमने क्या सिखाया था, MTP कैन बी डन अप टू 24 वीक्स इन what cases? Minor female, mentally unstable female, pregnancy due to rape and pregnancy due to incest. मिल गया mentally unstable, then mentally unstable है, कितने वीक्स तक कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं 24 वीक्स तक. अंडरस्टैंड, कितने वीक्स तक? 24 वीक्स तक. विच इज द करेक्ट आंसर? 24 वीक्स. नेवर 20 वीक्स, नेवर 22 वीक्स, नेवर 28 वीक्स. ठीक है. See the last question. A 29-year-old G3P2L2. G3 means third gravida. Presents with unwanted pregnancy which crosses the legal limit to terminate by medicines. Legal requirement for MTP includes the approval of 2 doctors. Among the following, which period best suits this requirement? क्वेश्चंस को घुमा के पूछा है. मैंने क्या बताया था? 2 डॉक्टर्स के अप्रूवल की जरूरत है. अंडरस्टैंड. तो 2 डॉक्टर्स के अप्रूवल की जरूरत कितने वीक्स तक हम लोगों को 2 डॉक्टर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है? अंडरस्टैंड. देखो 12 से 24 वीक्स, 12 से 24, 20 to 24, first 12 weeks, first 24 weeks. Let's see here. मैंने क्या बताया था? ओल्ड गाइडलाइंस और न्यू गाइडलाइंस. ओल्ड गाइडलाइंस में 2 डॉक्टर की जरूरत 12 से 20 वीक तक होती है. न्यू गाइडलाइंस में 20 to 24 वीक्स तक होती है. सी हेयर, बताया था ना. देखो तो यहाँ है 12 से 24 वीक्स. तो क्या ये ओल्ड गाइडलाइंस या न्यू गाइडलाइंस किसी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है? नहीं. 20 to 24 वीक्स, यस, ये तो मैच कर रहा है. और फर्स्ट 12 वीक्स ये तो है नहीं, फर्स्ट 24 वीक्स ये तो है नहीं. ठीक है. देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 20 to 24 वीक्स. ठीक है. आई होप MTP टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I request all of you to please tell me the topics name by which I can make more videos and make you more understand. Please like these videos to your friends and comments में ये बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो. Thank you. Have a nice day.